تو عزیزان محترم بس میں بیان کو سمیٹتا ہوں، ٹائم بہت ہو گیا، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ سے میری گفتگو کو سماعت فرمایا۔ میں بیان کو سمیٹتا ہوں، یہ روایت مکمل کر دوں۔ بات یہاں سے مڑی تھی کہ قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے لواء الحمد کے سائے کی، اور وہ پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ علی کے ہاتھ میں، اور اس کا سایہ اسے ملے گا جو علی کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہوگا۔ یہ ذرا منظر ذہن میں رکھیے گا، انبیاء کھڑے ہیں، کرسی شفاعت پہ رسول ہیں، علی لواء الحمد لیے ساتھ کھڑے ہیں۔ اتنے میں ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، اے گروہ انبیاء، کیا تم نے اپنے اپنے دور میں تبلیغ رسالت کی تھی، کار نبوت انجام دیے تھے؟ سارے انبیاء کہیں گے ہم نے کار نبوت انجام دیے تھے، کار رسالت انجام دیے تھے۔ تو اس وقت دوسری ندا آئے گی، اے گروہ انبیاء، کیا اپنی اس تبلیغ کا کوئی گواہ بھی لائے ہو؟ جن کے ذہنوں میں میری تقریر ہے ساری، اپنی اس تبلیغ کا، اس کار نبوت و رسالت کا کوئی گواہ بھی لائے ہو؟ جب اللہ نبیوں سے گواہ مانگے گا تو ایک کم 1,24,000 انبیاء رسالت معاب کی طرف متوجہ ہوں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ، جب ہم تبلیغ کر رہے تھے آپ تو دیکھ رہے تھے۔ یہ ہے عقیدہ بالنبوت، یہ ہے عقیدہ بالرسالت۔ یا رسول اللہ، ہم جب تبلیغ کر رہے تھے آپ تو دیکھ رہے تھے، اب آگے بڑھئے، اللہ نے ہم سے گواہی طلب کی ہے ہماری نبوت اور رسالت کی۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، ذہن بلند رکھے گا، اپنی ہماری کار نبوت اور رسالت کی گواہی دے دیجئے۔ جب اللہ گواہی مانگے گا اور انبیاء رسول کے پاس آئیں گے، علامہ مجلسی لکھتے ہیں فَنَظَرَ إِلَى الْيَمِينَ، رسول دائیں دیکھیں گے اور کہیں گے اَيْنَ حمزہ اَيْنَ جعفر، میرا چچا حمزہ کہاں ہے، میرا بھائی جعفر کہاں ہے؟ حمزہ کو بلائیں گے، جعفر کو بلائیں گے اور کہیں گے جاؤ چچا حمزہ، جاؤ چچا جعفر، عرش الہی کا پایا پکڑ کر ہماری نیابت میں انبیاء کی نبوت و رسالت کی گواہی دے دیجئے۔ حمزہ اور جعفر جائیں گے، جا کے انبیاء کی نبوتوں کی گواہی دیں گے۔ سر اٹھانا جملہ دے رہا ہوں، آئیے سب کہیں یا رسول اللہ۔ جب اللہ نے نبیوں سے گواہی طلب کی تو آپ نے حشر کے میدان میں جناب حمزہ اور جناب جعفر کو تلاش کیا۔ یا رسول اللہ، علی آپ کے ساتھ علم لیے کھڑے ہیں، آپ نے علی کو کیوں نہیں کہا کہ یا علی جاؤ اور جا کر نبیوں کی گواہی دو؟ تو آواز رسالت آئے گی، اے بھائی اطمینان رکھو، ابھی تو اللہ نے نبیوں سے گواہی مانگی ہے تو میں نے حمزہ کو بھیجا، جب اللہ مجھ سے میری رسالت کا گواہ مانگے گا۔ اللہ اکبر، جب اللہ مجھ سے میری رسالت کا گواہ مانگے گا تو اس وقت میں علی کو بھیجوں گا حشر کے میدان میں۔ اس وقت حشر ہو جائے گا کہ جب 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کی گواہی مصطفیٰ دیں گے اور مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی علی مرتضیٰ دیں گے۔ علی ہے رسول کی رسالت کا گواہ، اور اکیلا علی گواہ نہیں، حسن گواہ، حسین گواہ، اور علی زین العابدین۔ آج 25 محرم ہے، آج امام زین العابدین علیہ السلام کا روز شہادت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ امام کی مصائب پڑھوں۔ آج اس کی شہادت ہے جو ساری زندگی کربلا کے بعد خون روتا ہے۔ 35 سال تک امام روئے۔ 61 ہجری واقع کربلا ہے اور 95 ہجری امام کی شہادت ہے۔ 61 ہجری سے 95 ہجری تک 35 سال تک امام روتے رہے۔ میں آپ ہم سب رونے کے لیے مجلس کرتے ہیں، مصائب سنتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ جب ذاکر خطیب مصائب پڑھتا ہے تو ہم روتے ہیں، لیکن خدا کی قسم چوتھا امام کسی خطیب کے مجلس پڑھنے کا محتاج نہیں تھا۔
जो फुर्सा देने की नीयत से आए हैं। इमाम के सामने पानी आता था तो रोते थे, कनीज वजू के लिए पानी लेकर आती थी तो इमाम रोते थे। अल्लाह अकबर। कसाब कसाई जानवर ज़िबा करते थे, इमाम रोते थे। मैंने रिवायत देखी है कि एक कसाब ने जानवर को लिटाया ज़िबा करने के लिए, उसकी गर्दन पे छुरी रखी। अभी उसने छुरी चलाई नहीं थी कि उसकी निगाह इमाम पे पड़ी कि इमाम चले आ रहे हैं। उसने जानवर को छोड़ दिया, जानवर को ज़िबा नहीं किया। इमाम उसके करीब गए, कहा क्यों छोड़ दिया? अल्लाह ने इसे तेरे लिए हलाल किया है, तूने क्यों छोड़ दिया? कहा आका आपकी वजह से छोड़ा। कहा मैं जानवर ज़िबा करने से मना तो नहीं करता, मुझे बस इतना बता, तू इसे ज़िबा करना चाहता था, इसको ज़िबा से पहले पानी पिलाया था? आज रोज़े शहादत है, पुरसा दे जनाब फातिमा ज़हरा को, इमाम हुसैन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम सज्जाद का पुरसा दीजिए। कहा कि मैं सिर्फ इतना पूछता, मुझे इतना बता कि तूने इसको ज़िबा से पहले पानी पिलाया था? सुनिएगा जुमला, ये कसाब कहता है मौला मैं मुसलमान हूँ और आपके नाने की शरीयत पे अमल करता हूँ, हम कभी भी जानवर बगैर पानी पिलाए ज़िबा नहीं करते। अज़ादारो इतना सुना, चीखे मार के रोया तेरा इमाम। रुख किया करबला की तरफ, रो के कहते हैं बाबा मदीने के कसाब जानवर भी पानी पिला के ज़िबा करते। अजरुकुम अल्लाह। मौला मेरा और आपका शुमार रोने और रुलाने वालों में करे। मौला आपको करबला में प्यासा ज़िबा कर दिया। अजरुकुम अल्लाह। रोने में बुखल ना कीजिएगा आज़ादार, शर्म करके कभी ना रोया करें। मासूम फरमाते हैं वो आंखें कयामत के दिन बेनूर नहीं होंगी जिनकी आंखों से हुसैन के गम में आंसू निकलते। यही कसाब आपके इल्म में है कि जब गोश्त खरीदने हम जाते हैं तो उन्होंने गोश्त के टुकड़े सामने रखे होते ताकि ग्राहकों की निगाह पड़े, अपनी पसंद का टुकड़ा खरीदें। मदीने के कसाब जब गोश्त के टुकड़े सामने रखते थे और जब कभी इमाम पे निगाह पड़ती थी गोश्त के टुकड़ों पे कपड़ा डाल देते थे। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। गोश्त के टुकड़ों पर कपड़ा डाल देते थे, कहीं इमाम की गोश्त के टुकड़ों पे निगाह न पड़े। एक दफ़ा एक कसाब कपड़ा डालना भूल गया, इमाम की निगाह पड़ी, चीखे मार कर रोए। कसाब कहते हैं मौला इतना क्यों रोते हो? कहा ये गोश्त के टुकड़े देखकर कासिम की लाश के टुकड़े। अजरुकुम अल्लाह। चचा अब्बास की लाश के टुकड़े याद आते, बाबा हुसैन की लाश पर घोड़ों का दौड़ना याद आता। अजरुकुम अल्लाह। एक इमाम का सहाबी है, एक इमाम का सहाबी है, उसका नाम है नौमान इब्ने मुंजर। ये इब्ने मुंजर के नाम से मशहूर है। तारीख इमाम के पास आया और आकर कहते हैं मौला, ये मिनहाल से भी रिवायत है, मिनहाल से मुख्तसर रिवायत है, इब्ने मुंजर से तवील रिवायत है। इब्ने मुंजर आके कहते हैं मौला मुद्दत हो गई आपको रोते हुए, कब तक रोइए, कितना रोएंगे मौला? आपके आंसू खुश्क हो चुके, अब आंसुओं की जगह पे खून बहता, मौला कब तक रोएंगे? देख सकते हो मेरी तरफ देखना। जब उसने ये जुमले कहे इमाम फरमाते हैं अभी मुंजर तूने इंसाफ नहीं किया, याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ। शर्म ना करे, रोने में बुखल ना करे। याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, इतना रोए कुरान कहता है वब यज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न कि याकूब की रोते रोते आंखें सफेद हो गईं। इमाम सर पे मातम करके कहते हैं ओ अभी मुंजर मेरे तो 18 यूसुफ करबला। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मेरे तो 18 यूसुफ करबला मारे गए, ला मिस्ल लहुम वला नज़ीर, जिनकी कोई मिसाल नहीं थी। अब सुनिएगा जुमला। अभी मुंजर कहता है मौला
याकूब यूसुफ की मीरास शहादत नहीं थी, आपकी मीरास तो शहादत है। आपके घर में हमजा शहीद है, जाफर तैयार शहीद है, आपके बाबा अली शहीद हैं, आपके बाबा अली शहीद हैं, दादा आपके बाबा शहीद हैं। जब ये जुमला कहा तो अब जुमला सुनिएगा, अल्लाह करे ये जुमला मैं पहुंचा दूं। इमाम फरमाते अच्छा अबू मंजर ये बता कि अगर कोई गैरतमंद बेटा हो, गैरतमंद बेटा हो और उस गैरतमंद बेटे के सामने उसकी माँ के सर से चादर उतर जाए, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, उसकी माँ के सर से बुर्का उतर जाए, चादर उतर जाए, अभी मुंजर बता वो बेटा क्या करेंगे? अभी मुंजर कहता है मौला वो बेटा गैरत से मर जाएगा। जब ये जुमला कहा इमाम रो के कहते हैं अभी मुंजर मेरे सामने शेमर फातिमा की बेटियों के खेमे में दाखिल, जिसकी माँ बहनों और फुफियों के सरों से चादरें उतारी जाएं, बता वो खून के आंसू ना रोए तो क्या रोए? अभी मुंजर कहता है मौला आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पे हुई इस पूरे वाक़े में सुनोगे आज़ादारों? इमाम ने 3 मरतबा कहा अश्शा अश्शा अश्शा। आज़ादारों ना करबला को याद किया ना बाबा की लाश को याद किया, बल्कि 3 मरतबा कहा अश्शा अश्शा शाम। एक मर्तबा भी इमाम कहते ना तो शाम के मसाइब हमें समझ में आ जाते कि सबसे ज्यादा मुसीबतें शाम पे पड़ी। ये 3 मर्तबा क्यों कहा जो मैं समझाऊं? सुनोगे अज़ादारों, जो इमाम के इस 3 मर्तबा लफ्ज़ शाम कहने से जो मैं समझाऊं वो ये आगा जी, जो पहली मर्तबा कहा ना अश्शाम तो इमाम को बाजारे शाम याद आया। जब दूसरी मर्तबा कहा अश्शाम तो दरबारे शाम याद आया। जब तीसरी मर्तबा कहा अश्शाम तो जिंदान शाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला मौला आपको सबसे ज्यादा तकलीफ शाम में हुई और आपने 3 मर्तबा कहा अभी मुंजर 2-3 जुमले मुझसे सुनो आज़ादारों, आंखों में आंसू आ जाए, बुतूल राजी हो जाए। इमाम फरमाते ए अभी मुंजर हम कूफे में भी गए थे, हम शाम में भी गए, हमें कूफा के बाजारों में भी फिराया गया, हमें शाम के बाजारों में भी फिराया गया। जो देख सकते हो मेरी तरफ देखना। इमाम फरमाते कूफे में और शाम में फर्क ये था कि कूफे वाले छतों पर चढ़कर हमारी तरफ खजूरें फेंकते थे, जब हम शाम के बाजार से गुजरे कोई पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी फेंकता था, कोई आग के अंगारे फेंकता था। मुझे माफ करना जुमला यही है जो इमाम ने कहा एक मलून ने बाजारे शाम में हम पर आग के अंगारे फेंके, मेरे सर पे इमामा था, मेरे हाथ बंधे हुए थे, आग का एक अंगारा मेरे इमामे पे आके गिरा, मैं कहते रहा मलून। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारों, इमाम फरमाते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ उस वक्त हुई कि जब हम बाबे रईसी से गुजरे दरबाज़ारे शाम में, जब हम दाखिल हुए थे हमारे चेहरों की रंगतें और थीं, और जब बाजार खत्म हुआ फुफी ने मुझे नहीं पहना, मैंने फुफी को नहीं पहचाना, सर से खून रवा था, पत्थरों की बारिश हो रही थी। और फिर इमाम फरमाते हैं फिर हमें दरबार के बाबू साआत पे 3 दिन तक खड़ा किया गया। हमने 15 आज़ाने बाबू साआत पे सुनी और ये कहते थे अभी दाखिल नहीं किया जाएगा, अभी बदमाश इकट्ठे हो रहे हैं, शराबी इकट्ठे हो रहे हैं। जुमला सुनोगे 700 कुर्सी नशीन जब दरबार में बैठे, शिमर आया और कहा कैदी अब अपनी बहनों को लेकर
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला मेरा और आपका शुमार रोने रुलाने वालों में करे। कहा कैदी अब अपनी फुफियों बहनों और अपनी माओं के साथ दरबार में दाखिल हो जाओ। जब मैंने दरबार की भीड़ देखी, मैंने आसमान की तरफ मुंह किया और कहा लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश सज्जाद दुनिया में ना आया होता, अपनी फुफियों को शराबियों में ना देखता। इमाम फरमाते अभी मुंजर सबसे मुसीबत का लम्हा ये था, अब मुझे माफ कीजिएगा जब दिल दुखे। इमाम फरमाते जब हम दरबार में दाखिल हुए तो हमें दरबार में वहां खड़ा किया गया जहां गुलामों को खड़ा किया जाता था, और उसके बाद इमाम ने मातम किया। इमाम ने कहा सबसे बड़ा जुल्म जो दरबार में हुआ ये कि हम देख रहे थे यजीद के कदमों में एक तश्ते तला में मेरे बाबा का सर रखा हुआ था, इसके हाथ में वेद की छड़ी थी, मेरे बाबा के रुखसारों पे मारता था, होठों पे मारता था। एक सहाबी खड़ा हुआ कहता यजीद छड़ी को हटा ले, मैंने रसूल अल्लाह को देखा, रसूल अल्लाह हुसैन के लबों का बोसा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आजादारों आखिरी जुमले हैं। इमाम मसाइब पढ़ पढ़ कर रोते थे। जब 25 मुहर्रम आई मेरी तरफ देखना, रोज़े शहादत है, अल्लाह जाने आइंदा साल जिंदगी है या नहीं है, मातम कीजिएगा जुमला दे रहा हूं। जब इमाम का वक्त शहादत करीब आया, इमाम बिस्तर पर लेटे हुए थे, एक मर्तबा अपने बेटे इमाम बाकिर को करीब बुलाया, कहा बाकिर मुझे इस नरम बिस्तर से उठाकर खाक पे लिटा दो। कहा बाबा क्यों? कहा मुझे अपने बाबा का लाशा याद आ रहा है, जब मैं रुखसत हुआ था करबला से, मेरे बाबा का लाशा खाक पे पड़ा हुआ था, मुझे खाक पे लिटा दो। मेरी तरफ देखना ज़ादारो, इमाम बाकिर ने सैयद सज्जाद को उठाया, खाक पे लिटाया, कहा बाकिर मेरे सरहाने बैठ जाओ। आज के दिन 25 मुहर्रम इमाम बाकिर अपने बाबा के सरहाने बैठे। कहा बाकिर, बाकिर तू करबला में मौजूद था? कहा हाँ बाबा। कहा बाकिर तेरी उम्र 3.5 साल थी? कहा हाँ बाबा। कहा बाकिर मेरा वक्त शहादत करीब है, मेरे पास बैठो और मुझे करबला के मसाइब सुनाओ। सुनोगे अज़ादारो? बाकिर ने मसाइब पढ़ने शुरू किए। कहा बाबा मैंने करबला में देखा भाई अली अकबर के सीने में बर्छी लगी, बाकिर भी रोए, इमाम भी रोए। बाकिर कहता है बाबा मैंने देखा करबला में वो वक्त भी आया कि जब दादा हुसैन कासिम की लाश के टुकड़े उठा के लाए, इमाम भी रोए, बाकिर भी रोए। कहा बाकिर और बयान करो। बाकिर ने कहा मुझे माफ कीजिएगा। इमाम बाकिर कहते हैं बाबा करबला में वो वक्त भी आया कि जब दादा हुसैन घोड़े से गिरे, शिमर सीने पे सवार हुआ, रीश में हाथ डाला, ज़रबे चलाना शुरू की। एक सियाह बुरके वाली बीबी कभी दाएं कभी बाएं कहती थी ना मार, मैंने चक्कियां पीस के पाला। अज़ादारों बाकिर भी रोए, इमाम सज्जाद भी रोए। आखिरी जुमला जिन्हें रोना नहीं आता वो रोने की शक्ल बनाना। अज़ादारों इमाम ने मसाइब सुने लेकिन इमाम की शहादत नहीं हुई। सुनोगे इमाम की शहादत कब हुई? जब बाकिर ने कहा कि बाबा करबला में वो वक्त भी आया जब शामे गरीबा शिमर खेमे में दाखिल हुआ, ज़ैनब के सर से चादर उतारी, चादर का सुना इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन